Good morning student, this is exercise 3.3 question number 2 third part. Up to second part you have done, now third part. Look at this figure, this is a parallelogram and you have to find the value of x, y and z. Okay. First of all, AC and BD are two intersecting line. Intersecting means those lines which cut at a common point are called intersecting line. And when two lines intersect each other, then vertically opposite angle means आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं that are equal. Okay, since AC and BD are intersecting line, therefore if this angle is of 90 degree, then this angle is of also 90 degree. X is equal to 90 degree. Reason, vertically opposite angles. Now this angle is of 90 degree, this angle is of 30 degree. Then what is the value of y? This is a triangle. Now what is angle sum property? Sum of three angles of a triangle is always 180 degree na. Therefore angle x plus y plus 30 degree is equal to 180 degree. Since x is equal to 90 degree, so put the value of x. 90 degree, 90 plus 30 degree is equal to 120 degree, plus y is equal to 180 degree. Y is equal to 180 minus 120 is equal to 60 degree. Now come to the next part, question number 2, fourth part. This is a parallelogram and you have to find the value of x, y and z. Okay, since this is a parallelogram, therefore opposite angles are equal. Okay, if this angle is of 80 degree, then this angle is also of 80 degree. Y is equal to 80 degree. Opposite angles are equal in a parallelogram, you know very well. Okay, now x plus y, these are adjacent angle. Adjacent angle means those two angles which have a common arm. This angle includes AD and BA side. Okay, angle x include AD and BA side. Angle y include DC and AD line. Means AD line is common in both these two angles. एक line अगर common आ जाए तो that two angles are adjacent angle. So sum of these two angle is equal to 180 degree. X plus y is equal to 180 degree. Now value of y is 80 degree. Y की value क्या थी बेटा? 80 degree. So put 180 degree. Put 80 degree at the place of y. X plus 80 degree is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 minus 80 degree. That is 100 degree. X की value आ गई 100 degree. Now x is equal to angle 1. Opposite angles are equal in a parallelogram, so angle x is equal to angle 1. Now angle x is equal to 100 degrees, therefore angle 1 also is equal to 100 degree. Okay, now 1 plus z, both these angle form linear pair. ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे. हाउ? this ray is in this direction, this ray is in this direction, this is a common ray, and you know very well if two rays are in opposite direction and a common ray passes through them, then these angle form linear pair. ये दोनों linear pair बना रहे, इन दोनों का सम 180 होगा. angle 1 plus z is equal to 180 degree. now angle 1 is equal to 100 degree. then find the value of z. 100 when you shift to the right side it will become negative. 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. 100 बेटा उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ z इज 80 डिग्री. x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट. You have to find the value of x, y and z. Now this is a triangle ADC. Okay, this is a triangle and you know very well that opposite angles are equal in a parallelogram. If angle B is equal to 112 degree, then angle D is also 112. Therefore value of y is 112 degree. Opposite angles are equal in a parallelogram. Okay, this angle is of 112 degree, this angle is of 40 degree. Then what is the value of x? Sum of these three angles is equal to 180 degree. Why? Because this is a triangle and sum of all angles of a triangle is always 180 degree. y के प्लेस पर 112 पुट कर दीजिए. 112 प्लस 40 is what? 152 plus x is equal to 180 degree. Now find the value of x. Shift 152 to the right side, it will become negative. That is 180 minus 152, 28 degree. Now x is equal to angle x is equal to angle z. How? BC and AD are two parallel lines, and you know when a transversal intersect them,
टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिरछी लाइन अगर कट करती है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर x इज इक्वल टू z, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। वाई x इज इक्वल टू 28 डिग्री था, देयरफॉर z की वैल्यू भी 28 हो जाएगी। वाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स लेटर कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देन विच टाइप ऑफ एंगल्स आर इक्वल। आई विल डिस्कस इट लेटर, बाद में डिस्कस करूंगी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिरछी लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। ओके बेटा, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, value of x is 28 degree, value of z is also 28 degree, x and z are equal. Why? Because these two lines are parallel and this is a transversal. When two lines are parallel and a transversal intersect these two lines, then alternate interior angle are equal. ये alternate interior angle है बेटा x और z, तो therefore these two angles are equal. x की वैल्यू 28 थी तो z की भी 28 हो जाएगी, और ऊपर y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, अपोजिट एंगल इक्वल थे पैरेललोग्राम में, तो y की वैल्यू 112 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है? इफ एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, एंगल D प्लस बी, D एंड B आर इक्वल, ओके, एंड द सम ऑफ दीज टू एंगल इज गिवन एज 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम हमको 180 दे रखा है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में बोथ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं बेटा। अगर इन दोनों का सम 180 है तो एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 होता है। ओके, नाउ इट इज़ नॉट गिवन दैट एंगल ए एंड सी आर इक्वल। एंगल ए और सी के बारे में तो कंडीशन नहीं दे रखी ना फर्स्ट पार्ट में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू 180 देना इनफ नहीं है, आपको एंगल ए और सी के बारे में भी कंडीशन गिवन होनी चाहिए, साइड्स के बारे में भी गिवन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम में, मैंने डिस्कस की थी। डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद दिस कंडीशन। सेकेंड पार्ट, अगर AB और DC 8 सेंटीमीटर हैं, AB एंड DC दोनों साइड्स इक्वल हैं, एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? नो, बिकॉज पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, बट AD एंड BC आर नॉट इक्वल। AD और BC इक्वल नहीं गिवन है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ AD एंड BC अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65। अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, बट A एंड C आर नॉट इक्वल। A और C तो इक्वल नहीं दे रखे बेटा, तो कैसे कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा? सो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, draw a rough figure of a quadrilateral that is not parallelogram but exactly two opposite angles of equal measure। एक ऐसा रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल का जिसमें 4 साइड हों, जिसके 2 ही अपोजिट एंगल इक्वल हों केवल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ ए काइट। काइट की शेप है, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू DC, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। एंगल B और D इक्वल होते हैं बेटा, बट इसमें एंगल A और C इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज द डायग्राम ऑफ अ काइट विच इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। B और D तो इक्वल हैं एंगल, बट A और C इक्वल नहीं है, तो आपको ये काइट की फिगर ड्रॉ करनी है बेटा। क्लियर? इसमें ये बताना था कि एक ही पेयर इक्वल हो अपोजिट एंगल का। पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर इक्वल होते हैं ना, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट ये क्वाड्रिलेटरल है और काइट भी है। काइट की शेप है, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, एडजेसेंट एक दूसरे से सटी हुई, जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो, एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं बेटा। ओके, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एडजेसेंट एंगल जो है उनका रेशियो आपको 3:2 दे रखा है, तो इस एंगल को 3x मान लेना और दूसरे वाले एंगल को 2x कंसीडर कर लेना। ठीक है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है,
मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को ऐसे राइट करते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस और जीएम पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम है आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस एंगल को 3x कंसीडर कर लेना, इस एंगल को 2x। एंगल ए और डी एडजेसेंट एंगल हैं, इनका रेशियो हमें 3:2 गिवन है। हम मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड लेट एंगल डी इज इक्वल टू 2x। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 2x plus 3x is equal to 180 degree. Now 3x plus 2x is 5x. 5x is equal to 180 degree. X is equal to 180 divided by 5. What will you get? 36 degree. 5 की टेबल में 180 36 पे कैंसिल हो गया बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। एंगल ए को क्या लिया था हमने 3x, x की प्लेस पर 36 पुट कर दो, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 108। एंगल डी को 2x लिया था बेटा, तो 2 इंटू 36 72 डिग्री के इक्वल आ गया। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। ओके, ए और सी इक्वल होंगे, बी और डी। एंगल ए की वैल्यू आपके पास थी 3x, तो सी की वैल्यू भी 3x होगी, तो ए की वैल्यू 108 आई थी बेटा, तो सी की भी 108 होगी। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बी की वैल्यू आपकी आई है, एंगल बी और डी दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि बी और डी कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर डी 2x के इक्वल है तो बी भी 2x के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल डी आपका ऊपर हमने फाइंड किया था 72 डिग्री, तो एंगल बी भी किसके इक्वल होगा 72 डिग्री के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, दिस इज योर होमवर्क।